हिंदी व्याकरण से तुमको मिलाते हैं, संज्ञा विशेषण क्रिया सर्वनाम मिलाते हैं। हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण। सुप्रभात, आपका हमारे हिंदी प्रदर्शनी समूह में स्वागत है। आज हम आपके समक्ष अपने विषय हिंदी व्याकरण के ऊपर कुछ प्रस्तुत करना चाहते हैं। मेरा नाम प्रियांश बिष्ट है। सर्वनाम लिंग वचन जो शब्द व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव के नाम से जाने जाते हैं उन्हें संज्ञा शब्द कहते हैं। संज्ञा के तीन मुख्य प्रकार हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा उदाहरण राम सो रहा है। जातिवाचक संज्ञा उदाहरण लड़का गा रहा है। भाववाचक संज्ञा उदाहरण पीयूष रो रहा है। समूहवाचक संज्ञा उदाहरण बाजार में भीड़ है। द्रव्यवाचक संज्ञा उदाहरण गेहूं से आटा बनता है। संज्ञा के पद पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं मुझे, मुझको, उससे। प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं कौन, किसने, किसे। निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं इसने, इसको, यो। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं किसी को, किसी ने, कोई। संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं जिसने, जो, जिसने, जिसको। निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं स्वयं, अपनी, Okay. Explain it. Types of fraction. As we have learned types of fraction, but before learning types of fraction, we should know what are fractions. Improper fraction, mixed fraction, unit fraction, like fraction, unlike fraction, equal fraction, and proper fraction. First, proper fraction. Proper fraction are these numbers that have numerator less than or denominator. Example: 2/3. Improper fraction. Fraction which have numerator. Improper fraction, mixed fraction, unit fraction, like fraction, unlike fraction, equal fraction, and proper fraction. First, proper fraction. Proper fraction are these numbers that have numerator less than or denominator. Example: 2/3. Improper fraction. Fraction which have numerator more than the denominator is known as improper fraction. For example, 5/2 and 3/2. whole number the combination Equal fraction. The fraction having same value are called equivalent fraction. Example: 3/11 into 2 into 2, 3/11 into 3 into 3, 3/11 into 4 into 4. So we have in this project is this smallest form of fraction. like this is 1/8, 1/8 and 2/8. 2/8 is the simplest form is 1/4, and 3/8 is the simplest form. 4/8 is the simplest form is 2/4. 5/8 is the simplest form is always simplest. 6/8 3/4 or 6/8. 3/4 is the simplest form of 6/8. Thank you. If I use two parts of this circle, what is the friction value of this circle? Sir, 8. Sir, 2/8. 2/8. So because there are 8 parts. This is the simplest form. So 1/4 is the simplest form. 1/4 is the simplest form. Okay, what is the use of frictions? Can you explain, sir, in this field we use the friction?
fraction, it is used to divide a part. For example, if we cut a pizza into two pieces, Yes. Okay. And good. Good. Can you explain? plant-eating animals are called, they have two different digestive systems. Example, cow, bison, buffalo. The intelligence is a very complicated stomach that consists of four chambers that called men, So it swallowed it First time and then they mouth and the true function of mouth is speak anything from mouth the food goes to esophagus. These muscles generally push the food into in the visualization of एक और डाला था एक तो आपके साथ ही है ना ठीक है लिखा है Say loudly, beta. What is ChatGPT? software that helps humans find answers. Only finding the answer. What is Canva? Canva is an editing app that gives many features for editing videos, photos. Artificial intelligence. क्या होती है? What is artificial Artificial intelligence? intelligence equals power of communication. Use of artificial intelligence in education. Explain it. Start. Good morning, sir. Welcome to the World of Reptile. I am Swami of class 70. Today, me and my friend are here to explain our model on the topic reptile. First, we know what are reptile. Reptile are an animal that has cold blood, and reptile are that animal that has cold blood, and their skin made by scale bones, and their young come from the eggs. Example, lizard and crocodile. Sir, वह जीत Snake is a reptile? Yes? No? Yes. Now you explain it. Yes, I know. Reptile that dominated How you identify that particular animals are reptile or not? How can you identify that? आप कैसे पहचानोगे कि ये reptile है? सुप्रभात, मेरा नाम जयसिंह है। मैं कक्षा 7वीं का छात्र हूँ। आज मैं आप सभी लोगों के समक्ष हिंदी भाषा की महत्वपूर्णता बताने जा रही हूँ। इनमें मुझसे जो भी त्रुटियाँ होंगी कृपया मुझे क्षमा करिए। हिंदी भाषा इस विश्व में तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। भले ही हिंदी भाषा दुनिया की तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा होगी, लेकिन हमारे भारत में आजकल बहुत लोग हिंदी भाषा बोलने से झिझकते हैं। वो हिंदी से ज़्यादा इंग्लिश को प्रेफर करते हैं। ये इसके आगे आपको हमारी क्लास की एक सहपाठी हरिप्रिया बताएंगे। सुप्रभात, मेरा नाम हरिप्रिया कांडवाल है। आपको आज मैं हिंदी भाषा के महत्व के बारे में बताने जा रही हूँ। हिंदी भाषा की उत्पत्ति शौर सेनी अपभ्रंश से हुई है। हिंदी भाषा का व्याकरण संस्कृत से मिलता जुलता है। हिंदी भाषा का प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे पत्रकारिता, सरकार, शिक्षा और अखबार
मगर आज भी हम भारतीय युवा पीढ़ी हिंदी भाषा बोलने से शर्माते हैं और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा देते हैं। इसके आगे आपको मेरी एक सहपाठी वैष्णवी पांडे जानकारी देंगी। शुभ प्रभात, मेरा नाम वैष्णवी पांडे है। आज मैं आपको ऐसे कुछ कारण बताने वाली हूँ जिस वजह से हमारी हिंदी भाषा का महत्व कम हो रहा है। पहला, अंग्रेजी को बढ़ावा देना। आजकल के लोग ज़्यादा अंग्रेजी को बढ़ावा दे रहे हैं और हिंदी भाषा को कम बोल रहे हैं, जिस वजह से हमारी हिंदी भाषा को महत्व कम मिल रहा है। दूसरा, शिक्षा। आजकल विद्यालय में हर एक जगह जहाँ पे शिक्षा दी जाती है वहाँ पे लोग ज़्यादा अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और हाँ, हमारी हिंदी भाषा को ज़्यादा महत्व नहीं दे रहे। लेकिन हमको हमारी हिंदी भाषा को महत्व देना चाहिए। इसी का एक छोटा सा उदाहरण आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे एक दुकानदार है जिसने अपनी दुकान में लगाया गया बोर्ड हिंदी से लिखा हुआ उसको हटा के अंग्रेजी में लिखा हुआ लगा दिया, क्योंकि आजकल सब लोग अंग्रेजी को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, इसलिए उन्होंने सोचा कि हमको भी अंग्रेजी को महत्व देना चाहिए। इससे आगे मेरी रस्म। ओके, ठीक है, मैं तो समझ में आ गया। एक कॉमन क्वेश्चन है आप लोगों से। अच्छा, हिंदी की जगह अगर हम इंग्लिश यूज़ करते हैं तो क्या लॉस होता है? ऐसा क्या बेनिफिट होगा हिंदी से? सर, क्योंकि वो हमारी मातृभाषा है। बस दैट्स इट। सर, हमारी वो मातृभाषा है और अगर हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसको भी पता चलना चाहिए कि भारत की मातृभाषा क्या थी, किस तरीके से वो शुरू हुई और जैसे हर एक देश की अपनी अपनी मातृभाषा होती है और अपनी पीढ़ियों को बताते हैं। जैसा क्यों ना हम संस्कृत कर दें? सर, तो ऐसा क्या बेनिफिट होगा कि हिंदी में अगर चीज़ें हम ना पढ़ाएं, इंग्लिश में पढ़ाएं? इंग्लिश तो ग्लोबल लैंग्वेज भी है ना, बाहर की कंट्रीज में भी चल रही है, तो ज़्यादा फायदा नहीं होगा? हाँ, सर बताओ। सर हम किसी भी भाषा को किसी भी भाषा को हम उसको ये नहीं बोल रहे कि वो बुरी है। हम ये बताना चाहते हैं कि हर कोई देश देख ले, चाहे वो कोई भी देश हो, चाइना, देखो, यूरोप, ऐसे- वो अपनी भाषा को। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई चीज़ ज़्यादा आपको सस्ती मिलेगी तो आप उसको परचेस करोगे ना, तो कुछ हिंदी का ऐसा यूज़ तो होगा ना। देखो कितने बड़े बड़े हमारे हिंदी के साहित्यकार आए हैं। पर्सनली मैडम एक पूरी एक हिंदी पढ़ाने के लिए रखी गई है और बहुत सारे स्कूलों में हिंदी के प्रॉपर टीचर रखे जा रहे हैं। जैसे मैं साइंस पढ़ाता हूँ तो हिंदी का टीचर रखा जा रहा है, तो इसका कुछ बेनिफिट तो होगा ना। और हम हिंदी को हर जगह देखो बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा यूज़ तो होता होगा हिंदी का, कुछ ऐसा यूनिकनेस होगी जो हम इसको बचा रहे हैं। सर, उससे महत्वता लगेगी। सिर्फ महत्वता सोचो, अगर मैं कोई कॉन्सेप्ट है, कोई भी चीज़ है आप समझ रहे हो, अगर आप सबसे पहले किस चीज़ में समझते हो? जैसे आपने कहा मैम आई, तो आपने क्या समझा होगा? क्लास में मैम आई तो आपने क्या सोचा होगा? सीधे इंग्लिश में सोचा होगा। आपकी थिंकिंग लेवल कहाँ पे गया होगा? हिंदी में आपने सोचा होगा, मातृभाषा में जो आपने पहले सोची। तो जब आप मातृभाषा में चीज़ों की स्टडी करते हो, पढ़ते हो, तो दिमाग ज़्यादा कॉन्शियस हो जाता है, दिमाग को ज़्यादा इजीली चीज़ें समझ में आती हैं। ठीक है, तो आजकल लॉस क्या हो जा रहा है? इंग्लिश का बस बहुत ज़्यादा लॉस नहीं है, बट आप अपने घरों में जब हिंदी यूज़ कर रहे हो तो आपके लिए क्या हो गया, दिमाग में हिंदी का जितनी भी चीज़ें हैं सब आपके संग्रहित हो गई। ठीक है, और जब हम आपको चीज़ें समझाते हैं, जब आप हिंदी में चीज़ें समझते हो, ज़्यादा इजीली अंडरस्टूड होता है चीज़ें एज कम्पेयर टू इंग्लिश। आपने कभी सोचा है आपको इंग्लिश में आप जैसे साइंस पढ़ रहे हो क्यों नहीं आ रही? तो एक रीज़न ये भी है। ठीक है, तो इसलिए हमको इसको बचाना पड़ेगा। अगर आज हम इसको नहीं बचाएंगे तो हो सकता है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में हिंदी कैसे हुई है, जैसे Projector has and the system has grown smaller. And we have added some animals and some flowers in this, and my friend what is ecosystem? What is ecosystem?